So let's start today's topic, notches and wear. So what do you mean by notch? So here is this tank, and on its upper side we have created this hole through which liquid will flow out. Okay, so this hole is nothing but notch. It is used to measure discharge, and whatever the water is flowing through this is called nappe or vein. Okay, and what do you mean by weir? Weir is nothing but it is a structure constructed on a river or dam through which water is flowing above the structure. ठीक है. सो नॉच क्या होता है? एक ये हमारा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम लोग ने ओपनिंग क्रिएट किया है जहाँ से वाटर बाहर फ्लो होगा, उसको कहते हैं हम लोग नॉच. ओके, अब ये जो वाटर फ्लो करता है वो शीट ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं नैपे और वेन. ये जो बॉटम है ओपनिंग का उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट. ओके, तो नॉच इज नथिंग बट a small opening provided at the top of the structure. Now second is weir. Weir है हमारा nothing but it is a structure constructed on small river जिसके ऊपर से वाटर फ्लो करता है. ओके, ये पोर्शन हम लोग इसको कहते हैं क्रेस्ट. टॉप पोर्शन ऑफ अ वियर जहाँ से वाटर फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट. ओके, सो ये दो डिफरेंट है, नॉचेस एंड वियर्स. नाउ नॉचेस का भी डिफरेंट शेप हो सकता है. जैसे यहाँ पर वी शेप का ओपनिंग दिया गया है तो रेक्टेंगुलर शेप का भी ओपनिंग हो सकता है. ओके, सो हम लोग को डिस्चार्ज, ये नॉचेस से हम लोग क्या, नॉचेस और वियर से हम लोग जनरली डिस्चार्ज को मेजर करते हैं. ओके, अब ये डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को इक्वेशन चाहिए, तो वो इक्वेशन हम लोग को डिराइव करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट्स डिराइव द इक्वेशन फॉर रेक्टेंगुलर नॉच एंड ट्रायंगुलर नॉच. So let's derive the equation of discharge for rectangular notch. So ये हमारा है रेक्टेंगुलर ओपनिंग. एक टैंक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग होगा, ठीक है, जिसके अंदर से कितना वाटर बाहर डिस्चार्ज हो रहा है वो हम लोग को मेज़र करना है. तो रेक्टेंगुलर ओपनिंग का ये बॉटम पोर्शन होगा, उसको हम लोग लेते हैं लेंथ L. ओवरऑल डेप्थ लेते हैं हम लोग H. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास डिस्चार्ज की इक्वेशन हमारे पास है Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. ओके, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस वी ऑल्सो हैव कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ओके, सो एरिया with respect to this particular opening and velocity, we are having theoretical velocity equation v is equal to under root 2gh. Okay, now for finding discharge through whole opening we will assume a small strip first. Small strip of water जिसकी डेप्थ होगी del H and up till free surface to have H.
this will be our crest. So what will be the equation for this small strip? Del Q is equal to coefficient of discharge into area of strip into velocity. Coefficient of discharge, area of strip, what will be the area of strip? L into del H. What will be with you? Under root 2 G H and del Q. Now what will be the total discharge through whole this opening? That equation we have to find out. Okay, so what will we do? We will do integration on both the sides. Now this will become Q, coefficient of discharge is constant, length constant, under root 2G constant, integration 0 to whole, capital H, 0 to H, under root H del H. Now Q C D we can also write under root is equal to H raised to 1/2. What will be this? H raised to 3/2 upon 3/2, 0 to H. Sorry, small h. Keeping the limits 0 की तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है. What will be this? 3/2, 2/3 CD into L into under root 2G H raised to 3/2. So this is the equation of finding discharge through rectangular notch. Okay, first of all, what we are having this opening whose bottom length is L, whole height is capital H. We are assuming the small strip first of all जिसकी लेंथ है L and जिसकी डेप्थ है del H. Small h is depth of strip till free water discharge level. What will be, we are having already through continuity equation, we are having discharge formula Q is equal to A into V, and here we will also multiply coefficient of discharge. Velocity, theoretical velocity equation already we are having V is equal to under root 2GH. Now discharge over the small strip will be del Q is equal to coefficient of discharge into area of strip into V theoretical. Del Q is equal to CD, area of strip is equal to L, this is strip, L into del H under root 2GH. Now what we have to do? We have to find the discharge through this hole, total discharge. So what we'll do? Discharge on both, integration on both the side. Okay, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से लेके कैपिटल H तक. तो 0 से लेके कैपिटल H, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, अंडर रूट 2G भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगा. तो 0 टू ये सिर्फ हाइट चेंज होगी तो अंडर रूट H इंटू दिस DH del H. ओके, नाउ अंडर रूट H इज ऑल्सो इक्वल टू H of 1/2
and integration, what will happen? S is to 1 by 2 1 half plus 1 which is equal to s is to 3 by 2 and bottom में 3 by 2. Now this 3 by 2 will become 2/3, the 2/3 into coefficient of discharge L under root 2g, h we have kept the limit h, s is to 3 by 2. So this is nothing but the equation of discharge through triangular notch. Okay, what is the equation? Q is equal to 2/3 into coefficient of discharge into length into under root 2g, h raised to 3 by 2. Now to find the discharge through rectangular notch, we require two parameters, which is length and height. Okay, तब जाके आपके पास अगर लेंथ होगा, हाइट होगा, तब जाके आप क्या फाइंड कर पाओगे? डिस्चार्ज फाइंड कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट so now let's find the equation of discharge over a triangular notch. So this is our triangular notch. Okay, top portion width is B. From this is our H, and obviously triangular is having a V shape, is also called V notch, and this will be our theta. Okay, now if we are considering a small strip, it will be having its width is equal to small b, depth del h, and this is top portion h. This will be small h, and this will be h minus h. Okay, so now let's take this half portion. It will become b by 2. This will become theta by 2. This will be h. Okay, so what will be tan theta by 2? Tan theta by 2 is equal to b by 2 upon h. What will be b? B is equal to 2 into h into tan theta by 2. Now what will be small strip width? B is equal to 2 into this one h minus h, क्योंकि कैपिटल के लिए ओवरऑल h था, तो here will be h minus h into tan theta by 2. So this will be our small b, right? Now area of strip, let us go with area of strip. What will be area of strip? B into dh del h, right? Now what is small b? 2 into h minus h into tan theta by 2 into del h, right? Now what is discharge? Our again discharge through the strip, जो हम लोग ने आगे रेक्टेंगुलर में किया, सेम यहाँ पर हम लोग ट्राइंगल के लिए करेंगे. तो व्हाट विल बी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्ज? Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू थियोरेटिकल वेलोसिटी, राइट? नाउ स्मॉल स्ट्रिप के लिए है तो डेल Q कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू V थियो, del Q coefficient of discharge, what is area, 2 into h minus h tan theta by 2 into del h into under root 2gh, right? So this is the discharge of small strip.
through the small strip. Now what will be the overall discharge? Again same, Q is equal to let's do integration. Q is equal to integration of 0 to h coefficient of discharge into 2 into h minus h tan theta by 2 into del h into under root 2 g h, राइट. सो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो निकाल लेते हैं. तो सी डी हमारा कांस्टेंट होता है 2 कांस्टेंट, tan थीटा बाई 2 कांस्टेंट, देन अंडर रूट 2g कांस्टेंट. ओके, 0 टू h. इन शॉर्ट जो भी हाइट वाले टर्म्स है उनका ही इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद जो भी होगा बचेगा वो सब कांस्टेंट में निकल जाएंगे. ठीक है, 0 टू h ये हमारा h माइनस h और h इज टू 1/2. ये अंडर रूट वाला है, यहाँ पर ये जो अंडर रूट h है तो h इज टू 1/2 भी लिख सकते हैं. ये h माइनस h वाला और रिमेनिंग ये वाला डेल h. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस h इज टू 1/2 विथ दिस बोथ. ये ब्रैकेट है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 टू h कैपिटल H इंटू h इज टू 1/2 माइनस h इज टू 1/2 प्लस ये हो जाएगा h इज टू 3/2 इंटू डेल h. राइट, अब ये हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा h इंटू h इज टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस h इज टू 5/2 अपॉन 5/2 होल रेज टू 0 टू कैपिटल H. ये सेम टू सेम, सेम टू सेम, राइट. सो क्या था पास सी डी Q is equal to CD into 2 into tan theta by 2 into under root 2g h into h is to 3/2 and 3/2 minus h is to 5/2 and 5/2 0 to h. ओके, ये इक्वेशन हमारा हमको मिला. कोफिशिएंट डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू 2 इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2g. ये तो पूरा कांस्टेंट के कांस्टेंट टर्म्स है. बाकी हम लोग को मिला h इंटू h इज टू 3/2 माइनस h इज टू 5/2 अपॉन 5/2 0 टू h लिमिट. ठीक है, अब हम लोग एक बार h लिमिट रखेंगे, 0 रखने की तो जरूरत नहीं है, हम लोग h की लिमिट रखेंगे. तो हमारी h की लिमिट सी डी इंटू 2 इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2g h into h raised to 3/2 or raised to 3/2 minus h raised to 5/2 upon 5/2. ठीक है, टू कॉमन होके 2 बाहर निकल जाएगा. सी डी इंटू 2 इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2g. ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू h रेस टू ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस दिस विल बी h इज टू 5/2 एज इट इज. ये 2 ऊपर चला गया अपॉन 5, राइट. ये 2 कॉमन निकल जाएगा. सो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू 2 इंटू tan थीटा बाई 2 अंडर रूट 2g. 2 कॉमन निकाला, h रेस टू 5/2 अपॉन 3 माइनस h रेस टू 5/2 अपॉन 5. ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा होगा यहाँ पर 15 5h रेस टू 5/2 माइनस 3h रेस टू 5/2. ओके, correct. CD into 2 into tan theta by 2
तो अंडर रूट 2g इंटू 2, यहाँ पर कितना बचेगा, अगेन 2 बचेगा, सी डी इंटू 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2g 2 h रेज़ टू 5 बाई 2 बाई 15. तो this one is 2 into 2 into 2. Two twos are 4 twos are 8 by 15, coefficient of discharge into 10 theta by 2 into under root 2g into h raised to 5 by 2. This is the equation of discharge for triangular or V notch. Okay, ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, हमारे पास ये V नॉच था जिसके एंगल थीटा था, उसके ऊपर जो विथ है B, कैपिटल B है, हमारे पास डेप्थ है h. हम लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल स्ट्रिप अज्यूम किया है, स्मॉल स्ट्रिप लिया है, स्मॉल स्ट्रिप की विथ b है और उसकी डेप्थ डेल h है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इतना हाफ पोर्शन लेने में आ रहा है, तो विच इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन ऑपोजिट अपॉन साइड, एडजेसेंट साइड. तो हाफ लिया है तो दिस होल b विल बिकम b बाई 2, तो b बाई 2 अपॉन h. ओके, b को सब्जेक्ट टू फॉर्मूला बनाया, b इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू 10 थीटा बाई 2. स्मॉल b कितना हो जाएगा, स्मॉल b विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रिप. ओके, ये हम लोग ले रहे हैं ये स्ट्रिप स्मॉल b बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये इतना कितना था h माइनस h. ओके, तो ये स्मॉल स्ट्रिप के हिसाब से b इज इक्वल टू 2 इंटू एच माइनस h इंटू 10 थीटा बाई 2, राइट. सो लेट्स गो विथ एरिया ऑफ स्ट्रिप. एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना होगा, ये स्ट्रिप है, इसका एरिया b इंटू डेल एच, तो b इंटू डी एच. बी हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन पूरा रख दिया इंटू डेल एच का डेल एच. Then again we are having according to continuity equation q into area into velocity multiplying with coefficient of discharge. Small area of strip का first of all discharge फाइंड करेंगे, तो del q is equal to ct into del a into with u. del q is equal to ct, ये del a हम लोग ने एरिया ऑफ स्ट्रिप पूरा रख दिया 2 इंटू एच माइनस एच 10 थीटा बाई 2 इंटू डेल एच. ओके, ये पूरा इक्वेशन हम लोग ने रख दिया. वेलोसिटी हमारे पास v थी अंडर रूट 2gh है. अब हम लोग को ओवरऑल डिस्चार्ज इसका फाइंड करना है, तो हम लोग ने इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू h के टर्म्स में, और सभी जितने भी पैरामीटर्स है सभी हम लोग ने रख दिए. यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू h से, और फिर उसको इसकी लिमिट्स रख दी, 0 टू h की लिमिट रख दी, और फाइनल आंसर हम लोग को कितना मिला, डिस्चार्ज q इज इक्वल टू h बाई 15 सी डी इंटू 10 थीटा बाई 2 अंडर रूट 2g इंटू h इज टू 5 बाई 2. नाउ लुक, इन रेक्टेंगुलर नॉच वी आर हैविंग टू पैरामीटर्स h और l, दो होंगे तब डिस्चार्ज मिलेगा. ट्राइंगल के अंदर आपको क्या मिलता है, ओनली h आपको हो तब भी आप डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हो. ओके, तो कंपैरेटिवली इजियर कौन सा है आपका ट्राइंगल डिस्चार्ज फाइंड करना विथ थ्रू दिस वी नॉच, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही रिक्वायरमेंट है, ओनली हेड की. ठीक है, थैंक यू. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट एन कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रांसिस फॉर्मूला. and contraction and Francis formula. Now in this, अगर हमारी जो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, जो रिवर फ्लो कर रही है उसका विथ ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो हमारा वियर बना हुआ है उससे, तो क्या होगा, ये जो वाटर फ्लो कर रहा है रिवर का, ये जितना भी वाटर आ रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये जितना भी वाटर फ्लो कर रहा है वो यहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो फ्रांसिस ने ये फाइंड किया कि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो दोनों साइड से कितना वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, लेकिन ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस टाइम पर इफेक्टिव लेंथ ऑफ वियर कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है ये साइड से आपका 0.1 h जितना रिड्यूस हो रहा है, यहाँ से आपका 0.1 h जितना रिड्यूस हो रहा है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वियर जो आपकी हो जाती है वो हो जाती है L माइनस 0.2 इंटू एच। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका डिस्चार्ज की इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 2/3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू जो हम लोग L यूज करते थे वहां उसकी जगह पर L माइनस 0.2 इंटू एच सेम अंडर रूट 2g इंटू एच रेस टू 3/2। ओके, कौन सी कंडीशन के अंदर, हमारी जैसे रिवर होती है उसकी, हम लोग ने कोई भी रिवर के ऊपर पर्टिकुलर अगर वियर बनाया है तो रिवर की विड्थ ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली टू वियर, तो उस टाइम के अंदर क्या होगा कि आपकी रिवर है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से दोनों पोस्ट की साइड से थोड़ा 0.1 h इंटू 0.1 h जितनी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, तो इफेक्टिव लेंथ वियर की कितनी हो जाएगी, L माइनस 0.1 h माइनस 0.1 h, तो L माइनस 0.2 h जितना हो जाएगा, तो वो इफेक्टिव लेंथ हम लोग डिस्चार्ज के अंदर यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू 2/3 CT L माइनस 0.2 h इंटू अंडर रूट 2g इंटू एच रेस टू 3/2। ओके, तो और अगर कोई कंडीशन ऐसा हुआ कि वियर को अगर नंबर ऑफ बेस के अंदर या स्पान के अंदर या वर्टिकल पोस्ट के अंदर अगर डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जांपल ये हमारा वियर है, इसके ऊपर नंबर ऑफ पोस्ट लगाए हुए है, ठीक है, तो क्या होगा, हर एक पोस्ट की साइड से भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर आपकी फॉर्मूला क्या होगी, Q इज इक्वल टू 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू L माइनस 0.1 इंटू N इंटू एच अंडर रूट 2g h raised to 3/2. Now what is N? This is number of N contraction. Number of N contraction, which is nothing but this span 1 2 1 2 1 2 1 2. So this is number of span 1 2 3 4 5 into हर एक साइड से 2 बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है into 2, so this is equal to 10. ओके, सो ये वैल्यू को यहाँ पर n की जगह पर पुट कर देना है 0.1 इंटू एच, L माइनस ओरिजिनल लेंथ माइनस जितना ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो इतना रिड्यूस हो जाएगा अंडर रूट 2g इंटू एच रेस टू 3/2। ओके, सो नाउ लेट्स डू न्यूमेरिकल्स। So now let's solve the numerical. Question is, water is flowing through a rectangular notch having base width 500 mm and head over it is 160 mm. Find the discharge of notch. Okay, rectangular notch है जिसके base width दी हुई है 500 mm and head over it is given 160 mm. ओके, डिस्चार्ज कितना हो रहा है ये पर्टिकुलर नॉच से वो हम लोग को फाइंड करना है। सो व्हाट वाज आवर इक्वेशन, डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 2/3 L अंडर रूट 2g h। सॉरी, अंडर रूट 2g h रेस टू 3/2। ओके, 2/3 इंटू CT इंटू L इंटू अंडर रूट 2g इंटू h रेस टू 3/2। ओके, फॉर रेक्टेंगुलर नॉच, एंड अगर ट्रायंगुलर नॉच होता तो 8/15 CT इंटू अंडर रूट 2g tan θ/2 into under root 2g into h raised to 5/2. Okay, so what is our here length and height is given, just keep the value, coefficient of discharge 0.6 is given, L is given,
160 mm. Let's convert it into meter, which will be equal to 0.5 meter. Under root 2 into G, 9.81 into H. Here it's given. Sorry, mistake हो गई. 2/3. Coefficient of discharge is 0.6 into length is 500 mm, which will be equal to 0.5 under root 2 into 9.81 into H हमारे पास है 160 mm, which will be equal to 0.16 मीटर. ओके, ये आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 40 meter long weir is divided into 10 equal parts by vertical post, each 0.5 meter wide. Calculate discharge over weir under a head of 1.5 meter. Coefficient of discharge is 0.6. ये एक weir है जिसको 10 equal parts में डिवाइड किया गया है. ठीक है, मतलब ये जो पार्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. मतलब टोटल 9 पोस्ट हुए. ठीक है, और ये हर एक पोस्ट की विड्थ कितने दी हुई है 0.5 मीटर. तो हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट डिस्चार्ज करना है. ये वियर के अंदर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है. ठीक है, सो इसके लिए हम लोग को फ्रांसिस की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. फ्रांसिस ने कौन सी इक्वेशन दी हुई थी, Q इज इक्वल टू 2/3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू अंडर रूट 2G. L माइनस जितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये हर एक पोर्शन के अंदर से जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हम लोग को माइनस करना है 0.1 एंड H इंटू H/3/2. ओके, सो 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया गया है 0.6 अंडर रूट 2 इंटू 9.81 इंटू टोटल लेंथ कितनी हुई है 40 मीटर की आपकी लेंथ है. ओके, ये ओवरऑल आपका लेंथ है, लेंथ है 40 मीटर. ओके, अब इसके बीच में से आपको ये सब जो पोस्ट है वो आपको माइनस कर देने पड़ेंगे. तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 9 पोस्ट है और एक पोस्ट की विड्थ कितनी है 0.5. तो ये आपका हो जाएगा 35.5 मीटर. राइट, सो L आपका हो जाएगा 35.5 माइनस 0.1. N कितना है आपका, टोटल नंबर ऑफ N कॉन्ट्रैक्शन. ये आपका N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ N कॉन्ट्रैक्शन. तो वो कितना है आपका, कितने कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं. तो ये हर एक साइड पर 1 और 2, ये 1, 2 इस साइड से कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्शन होगा. तो जितने भी आपका पार्ट्स है इन 2 कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ N कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएंगे. तो कितने नंबर ऑफ N कॉन्ट्रैक्शन है 20 है, और H आपके पास कितना है 1.5 दिया हुआ है. तो 1.5 into 1.5/3/2. ओके, 2/3 into 0.6 into under root 2G 2 into 9.81 into length 35.5 minus 0.1 into N contraction 20 into H 1.5 और वापस आपका H का है power/3/2. तो ये आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा Q is equal to around 105.5 meter cube per second. Okay, so this type of numericals are there in this particular unit, so kindly just go through it. Thank you.